Hello friends. So now we'll study our next lecture on integration of Hyderabad in India. Uh, Actually, Hyderabad is a peculiar case because Hyderabad is integrated in India by means of police action. Uh, as you know, it is the only, you can say, the only princely state. Junagadh also has been integrated by police action, but that is not by actually police action. Police, the army of India has occupied the borders of, the borders of the Junagadh. But here, the army has entered the Hyderabad and, fought the army or fought the soldiers of Hyderabad or the army of Hyderabad who are fighting against the Indian army to annex the Hyderabad. So it is the only Indian state, you can say, where the police action or military action is required to annex Hyderabad or to integrate Hyderabad in India. So you should remember this point, that Hyderabad is the only princely state where the police action is, which is integrated in India by means of police force or police action. You can say army action. Okay? So we will study about Hyderabad today. So Hyderabad, Hyderabad is the largest princely state, you can say. The largest princely state which is situated between the North India and the South India. ये North India है, South India और बीच में हैदराबाद स्टेट है. So its geographical position is very important. As you can see, it is very important geographically, as it is the point which actually connects the North India with the South India. So for communication between North India and South India, for trade related purposes, or for for traveling and all those things, Hyderabad is very important. And for security purpose also, because Hyderabad lies within the boundaries of India. And it is a landlocked state. So any security threat to Hyderabad is actually security threat both to North India as well as South India. So and to entire India, it is a security threat. So Hyderabad security is very important. So it is important for Sardar Vallabhbhai Patel or for India to have Hyderabad integrated with India. But actually, when India is getting independence, Hyderabad at that time was ruled by the Muslim Nawab, who is called the Nizam Usman Ali Bahadur. So at the time of independence from India, it is ruled by Usman Ali Bahadur of Nizam Shahi dynasty. Asaf Jahi dynasty. Nizam Shahi, Asaf Jahi dynasty. Usman Ali Bahadur was the Nawab, and the Prime Minister was Laik Ali Khan. So Laik Ali was the Prime Minister, and Prime Minister is Diwan, and Usman Ali Bahadur was the Nizam. And Nizam was of the view that he should not join India. So it is in the interest of Hyderabad not to join India. Or Hyderabad wants to directly deal with British because it considers itself as the independent princely state. So it wants directly to deal with British. So it wants to become a member of British Commonwealth of Nations. But the British actually denied to make Hyderabad as its member, British Commonwealth of Nations. It wants that it should become member of British Commonwealth of Nations either under India or under Pakistan. मतलब इंडिया और पाकिस्तान के अंडर में जाए, फिर उसके बाद वो मेंबर बने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का. So Hyderabad is dealing directly with British. So this is a major problem for India, that it is dealing directly with the British government. But British actually didn't support Hyderabad in that case, because Lord Mountbatten has purely denied that you will not become member of British Commonwealth of Nations unless and until you join India or Pakistan. But it is not possible for Hyderabad to join Pakistan because it is not at all geographically linked with Pakistan. But because it is a landlocked state and it is occupied by the Indian states on all its sides, so it is imperative for Hyderabad to join India. It cannot join Pakistan. But the Nizam there wants to remain independent or to join Pakistan. It doesn't want to join India. And there is so Hyderabad has its own army of 24,000 members.
24,000 strength of Hyderabad army. And there is an official army of Muslims who are called Rajakars under its Senapati, you can say, commander in chief. Under its commander, he is not the commander in chief but a lawyer whose name is of Latur, lawyer of Latur, whose name is Qasim Rizvi. तो कासिम रिजवी ने अपनी एक आर्मी वहां पे बनाई हुई थी, रजाकार आर्मी, हु स्ट्रेंथ इज 2 lakhs, 2 लाख की स्ट्रेंथ इसकी, इतनी बड़ी आर्मी थी. एंड कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम्स, हार्डकोर मुस्लिम्स, बहुत जो उस टाइप के मुस्लिम्स होते हैं ना, कट्टर मुस्लिम्स टाइप, हार्डकोर मुस्लिम्स, उस टाइप के मुस्लिम्स वर द मेंबर ऑफ दिस रजाकार. एंड मेनली इस आर्मी का काम क्या था कि जो भी निज़ाम के खिलाफ जो भी कोई एजिटेशन या जो भी कोई प्रोटेस्ट होता था, कोई भी बात निज़ाम के विरुद्ध होती थी, तो या रजाकार आर्मी एक्शन लेती थी उसके खिलाफ. बट दैट इज एन ऑफिशियल आर्मी. एंड द पार्टी विच इज फॉर्म्ड बाय कासिम रिजवी नेम इज MIM, मुजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन. So this Razakar army works under the command of Mujlis A Ittihad ul Muslimin, founded by the Qasim Rizvi, lawyer of Latur. तो ये बहुत हार्डकोर मुस्लिम्स थे और ये हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे ये लोग. वहाँ पे 85% मुस्लिम्स थे हैदराबाद में, 85% मुस्लिम्स, रेस्ट हिंदू 85% हिंदूज थे और करीबन 12-13% मुस्लिम्स थे और रेस्ट जैन्स थे एंड अदर कम्युनिटीज. तो ये हिंदू, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी, उसके बावजूद वहाँ की निज़ाम चाहते थे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहें. और कासिम रिजवी वहाँ पे क्या था, हैदराबाद में फ्यूडल पीजेंट का बहुत बड़ा वो हुआ था, एजिटेशन हुआ था, मूवमेंट हुआ था फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ. उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हिंदूज ही थे. तो इस रजाकार ने उनको बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया था, उनको बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत मारा था. और जब इन्होंने डिक्लेयर किया कि दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, तो भी एजिटेशन स्टार्ट हो गई वहाँ पे हैदराबाद में, अलॉन्ग विद द पीजेंट एजिटेशन. तो ये एजिटेशन, पीजेंट एजिटेशन, ये थोड़ी पॉलिटिकल हो गई थी क्योंकि इन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया था. अब क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने परसुएट किया. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जैसे स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस ऑफ हैदराबाद, सो इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली परस्यूड हैदराबाद टू ज्वाइन इंडिया, बट हैदराबाद प्योरली डिनाइड इट. और हैदराबाद ने फाइनली इन्होंने, निज़ाम ने एक लेटर लिखा टू दी मोहम्मद अली जिन्ना, और उनको लगता था कि इंडियन गवर्नमेंट उनको परसुएट करी, इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन ना ले ले, मिलिट्री एक्शन उनके खिलाफ ज्वाइन कराने के लिए. तो उन्होंने जिन्ना से बोला कि आप अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी हमारे खिलाफ, तो आप क्या हमारी मदद करेंगे. तो जिन्ना ने मना कर दिया साहब. तो उनको पता लग गया कि पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का इरादा छोड़ दिया और फाइनली उन्होंने सोचा कि रिमेन इंडिपेंडेंट. बट वहाँ का एजिटेशन, वहाँ पे एजिटेशन बढ़ता जा रहा था, पीजेंट एजिटेशन जो पॉलिटिकल हो गया था. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया. वो कैन नॉट रिमेन साइलेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारी आर्मी का सपोर्ट लीजिए और इस एजिटेशन को वो कीजिए, मतलब विल प्रोवाइड यू दी आर्मी, आवर आर्मी विल बी स्टेशन इन दी हैदराबाद, सो विल साइन एन एग्रीमेंट विद अस विच इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. तो उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपका स्टेटस को मेंटेन रहेगा, बट विल स्टेशन अवर आर्मी टू सप्रेस एनी एजिटेशन और एनी वायलेंट मूवमेंट. अब क्या हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ नवंबर 1947 में विद दी हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद को कुछ स्पेशल कंसेशन दे दिए गए. 1 साल तक के लिए स्टेटस को मेंटेन रहेगा और हैदराबाद को ऑब्वियसली फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस को छोड़ के, यानी कि उन तीनों को छोड़ के हैदराबाद सारा कुछ अपने हिसाब से कर सकता था. अपना सारी अथॉरिटी हैदराबाद के निज़ाम के हाथ में रहेगी. और उनको
वहाँ पे आर्मी स्टेशन रहेगी, हमारा इंडियन आर्मी, कोई भी एजिटेशन या मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। अब क्या हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो गया, बट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद ने ब्रेक कर दिया। क्या किया इन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ की मदद दी। सो दे हैव ब्रोकन द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड दे हैव प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ 20 करोड़ टू पाकिस्तान, प्लस उन्होंने वहां से आर्म्स भी इंपोर्ट किए पाकिस्तान से, क्योंकि कासिम रिजवी इंडिया के खिलाफ थे और कासिम रिजवी बहुत कट्टर मुसलमान थे। कासिम रिजवी चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया से उनका नाता टूट जाए, इंडिया से खत्म हो जाए नाता, और इसलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया। उन्होंने क्या किया, गिव असिस्टेंस टू पाकिस्तान, गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 20 करोड़ टू पाकिस्तान। और क्या किया इन्होंने, इंपोर्ट आर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान। और क्या किया इन्होंने इंडियन करेंसी में डीलिंग बंद कर दी हैदराबाद ने। और इंडिया के जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स वगैरह, यील्ड्स वगैरह, इन सब में भी डीलिंग बंद कर दी। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया है, वायलेट किया है। क्योंकि स्टैंड स्टिल में क्या था कि ऑब्वियसली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन तो इंडियन गवर्नमेंट डील करेगी, बट ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के साथ मदद नहीं दे सकते, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, पाकिस्तान से आप डीलिंग नहीं कर सकते और आप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। और उसमें ये भी था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हुए ये भी लिखा था उसमें कि 1 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और 1 साल बाद देखा जाएगा कि आपको इंडिया में इंटीग्रेट किया जाए या नहीं किया जाए। बट 1 साल तक इंडिया इंटीग्रेट नहीं करेगी, आपको एक्सेशन नहीं करेगी आपका। बट उन्होंने क्योंकि ब्रेक कर दिया तो इंडियन गवर्नमेंट को दिख गया कि ये तो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर इनको इंटीग्रेट होना था इंडिया में और उसके बजाय इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और उधर ऑब्वियसली रजाकार्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने लूट, मर्डर बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गए थे इन हैदराबाद ऑफ हिंदूज, कासिम रिजवी की रजाकार द्वारा। तो जून 1948 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद सी राजगोपालचारी बने हमारे नए गवर्नर जनरल। तो उन्होंने थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली हैदराबाद को लिया और उन्होंने हैदराबाद को बोला कि आपने तो ब्रेक कर दिया है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, नाउ आप इंडिया में इंटीग्रेट हो जाइए। अब आप इंडिया में इंटीग्रेट होने से अपने आप को नहीं बचा सकते, यू हैव टू इंटीग्रेट विद इंडिया। बट निज़ाम उस्मान अली बहादुर ने मना कर दिया कि नॉट इंटीग्रेट इन इंडिया, विल हैव आवर ओन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ये जो मुद्दा था कि इंडिया कभी भी मिलिट्री एक्शन ले सकती है, इसको यूएन में ले गए वो, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए। जैसे ही सरदार पटेल ने देखा कि ये मुद्दा कश्मीर की तरह इंटरनेशनल हो सकता है और ये भी गड़बड़, और ये एक अल्सर हो जाएगा इंडिया के स्टमक में, इसको बोल रहे थे हैदराबाद कैन बिकम ए अल्सर इन दी स्टमक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन के लिए अगस्त में उन्होंने माना था, अगस्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था हैदराबाद, और सितंबर में उन्होंने 13 सितंबर को अपनी आर्मी भेज दी हैदराबाद में टू एनेक्स दी हैदराबाद इन इंडिया। और विद इन 5 डेज यानी कि 17 तारीख को इंडिपेंडेंस हो गया हैदराबाद का, यानी कि 17 सितंबर में 1948 में हैदराबाद इंडिया का पार्ट हो गया, इंटीग्रेट हो गया। और ये जो मुद्दा लेके जा रहे थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे में, ये मुद्दा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था वहाँ पे, केवल लेके गए थे बट वहाँ पे अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी और एक्सेप्ट नहीं हुआ था मुद्दा। तो ये मुद्दा वहीं की वहीं ठंडे बस्ते में चला गया नहीं। उन्होंने कोशिश किया यूएन ने कि इस मुद्दे को लेकर आया जाए, बट इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया था क्योंकि इंडिया में आ गया था, एनेक्स कर लिया था इंडिया ने हैदराबाद को, और निज़ाम ने, उस्मान अली बहादुर ने साइन कर दिया इंडियन इंटीग्रेशन पे 17 सितंबर को साइन कर दिया एक्सेशन इन इंडिया, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो निज़ाम ने कहा
निज़ाम ने अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस्तीफा ले लिया और निज़ाम ने कहा नाउ हैदराबाद इज इन योर हैंड्स, आपके हाथों में हैदराबाद को सौंपता हूँ। बट निज़ाम क्योंकि सरेंडर कर दिया था निज़ाम ने इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन फोर्सेस, तो इंडिया ने उनको एक रियायत देते हुए इंडिया ने उनको ही वापस निज़ाम या फिर राजा अपॉइंट कर दिया, यानी कि उनको ही रहने दिया राजा। बट ऑब्वियसली वो प्रीवी पर्स पे रहेंगे, मेन तो इंडिया का ही वो हो गया, इंडिया का वहाँ पे लॉ चलेगा, बट वो प्रीवी पर्स करके राजा बन के रहेंगे, वहाँ पे प्रीवी पर्स लेते रहेंगे। तो यूएन में चला गया था मुद्दा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही एजिलिटी से और बहुत ही शार्पनेस से इसको इंटरनेशनल होने से बचा लिया, जो कि एक्चुअली जम्मू कश्मीर हो गया फाइनली। जम्मू कश्मीर में तो हो गया था, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसके मुद्दे को इंटरनेशनल होने से बचा लिया क्योंकि बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया उन्होंने। जैसे ही हैदराबाद ये मुद्दा लेके गया यूएन में और आईसीजे में, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है टू नेक्स्ट इंटीग्रेट हैदराबाद इन इंडिया, एंड विल गिव 100 points to Sardar Patel for that. So this is all about Hyderabad. And in the next lecture, so हाँ, तो हैदराबाद में जो एक्शन था मिलिट्री का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो। पोलो ऑपरेशन बोला गया था, मिलिट्री एक्शन जो लिया गया 13 सितंबर को, 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 17 सितंबर तक चला था, एंड ये ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन पोलो। पोलो इसलिए क्योंकि पोलो ग्राउंड थे हैदराबाद में बहुत ज़्यादा, करीबन 13-14 पोलो ग्राउंड थे, जो कि वर्ल्ड में उस टाइम सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड थे उस टाइम हैदराबाद में। सो दैट इज वाई द ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन पोलो टू इंटीग्रेट हैदराबाद इन इंडिया। कासिम रिजवी भाग गया हैदराबाद छोड़ के और बहुत लार्ज स्केल ब्लड शेड हुआ था, इसमें सबसे बड़ा ब्लड शेड हुआ था इंडिया में उस टाइम, ये जो ब्लड शेड हुआ था इन हैदराबाद, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। बाकी इतना ब्लड शेड कहीं नहीं हुआ, कश्मीर में भी नहीं हुआ था, बट हैदराबाद में सबसे बड़ा ब्लड शेड हुआ उस टाइम टू इंटीग्रेट हैदराबाद। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय लेक्चर। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक थैंक यू सो मच।